topic. Now today we are going to understand what is waterfall model. तो waterfall model जो होता है that is also a one of waterfall model जो है this is very I mean this is one of industries एक इंडस्ट्री का सबसे एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है. One of the famous model that is that is been used in the industry. ठीक है everyone. So first of all we need to, okay, we can take this one, right? We can take this one. So specifically system design. Okay, बहुत सारे लोग जैसे as I said हर एक फेस को अलग अलग बोलते हैं. I don't want you to be confused over here. Let's see, otherwise we can create our own diagram. Just a minute. Just a minute. Let me check the correct one. अगर correct one we have, that is all okay. Requirement, system design. I think this one is all okay. Instead of system design, we can system testing, system deployment. Okay, let it be. Let's create our own diagram, everyone. So let's specifically जो waterfall model होता है इसमें again you are going to have generic phases, all the generic phases आपके पास फिर से सारे generic phases होंगे. तो सबसे पहले आपके पास जो phase होगा that is nothing but the information gathering. सबसे पहले SDLC का प्रोसेस क्या बोलता है गाइस? which is the first step, which is the initial step of SDLC, that is information gathering, gathering. right? या फिर Gathering. requirement gathering हम लोग बोलेंगे, right? Information gathering is the initial phase. So see guys, in each and every model जो हमने पहले जेनेरिक फेजेस देखा था that is going to be repeated, वो सारे रिपीट होने वाले हैं. So the initial stage is information gathering. Information gathering के बाद we have the next stage that is nothing but second वाला जो stage है that is which one is the second stage everyone? That is analysis, Analysis. right here, like product owner team is going to do the analysis, right? They are going to do analysis about their requirement. They are going to modify, I mean they are going to filter all the requirement which are feasible and which are not feasible, that they are going to determine. So after the analysis phase we have one more phase, that is nothing but design phase. Designing. करेक्ट, डिजाइन करते हैं हम लोग, डिजाइनिंग फेज. सो हियर solution architect or system architect, they are going to design the system, they are going to design the UI. Especially आपका UI design होता है, that is nothing but they are going to prepare high level design and a low level design वो लोग prepare करेंगे. Once it is done, the next stage is development stage. So is in a development stage developer is going to be there. So this is development फेज आएगा, या फिर इसको कोडिंग स्टेज भी बोलोगे आप. यहाँ पर कोड किया जाएगा, डेवलपर इज गोइंग टू प्रिपेयर द कोड, राइट? आफ्टर द कोडिंग वी हैव वन अनदर स्टेज, दैट इज नथिंग बट द टेस्टिंग स्टेज. ये आप लोगों का टेस्टिंग स्टेज आएगा एवरीवन. दिस इज द टेस्टिंग स्टेज, इसको आप लोग टेस्टिंग स्टेज बोलोगे. वंस दैट टेस्टिंग स्टेज इज डन, जैसे आप लोगों का टेस्टिंग स्टेज कंप्लीट हो जाएगा,
we are going to move to the next part, that is nothing but the last but not the least guys, जो next phase आता है, that is nothing but the deployment. Correct? Deployment and maintenance, right? So I'm not keeping different stages for uh, both these things. That deployment होने के बाद गाइस वैसे भी मेंटेनेंस फेज डिप्लॉयमेंट होने के बाद आने वाला है. सो दीज आर द जेनेरिक फेजेस. ये सारे जेनेरिक फेजेस है. एंड इफ वी लुक एट द जेनेरिक फेज गाइस, ये सारे अगर जेनेरिक फेजेस को हम लोग देखेंगे, सो इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोला जाता है? वाई इट इज कॉल्ड एज अ वाटरफॉल मॉडल? क्योंकि जैसे अगर हमने कल देखा था, इफ वी रिलीजेस सम सॉर्ट ऑफ वाटर, अगर हम लोग टॉप से वाटर रिलीज कर देंगे, सो दैट विल कम डाउन टू द बॉटम ओनली, राइट? वो बॉटम से अप नहीं जाएगा. दैट कैन नॉट, आई मीन, अगर हम लोग किसी स्टेज पे, लेट्स से डिज़ाइनिंग स्टेज पे है, और डिज़ाइनिंग स्टेज में हमें पता चलता है कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है दैट इज़ नॉट एज पर द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो गाइज यू कैन नॉट गो बैक. आप लोग पीछे नहीं जा सकते हो. यू कैन नॉट गो बैक. आपको फिर डिज़ाइन करने के बाद डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द वाटरफॉल मॉडल एवरीवन. सो इसमें स्पेशली ये जो मॉडल है, ये मॉडल इंडस्ट्री में फेमस हो चुका था. आफ्टर द फिश मॉडल ये मॉडल ज़्यादा आना शुरू हो गया. इसमें भी गाइस अगेन आपका जो रिव्यू एक्टिविटीज़ है, ये सेम एक्टिविटीज़ यहाँ पर करा जाता है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद रिव्यू होगा, एनालिसिस के बाद रिव्यू होगा, डिज़ाइनिंग के बाद रिव्यू होगा, डेवलपमेंट के बाद रिव्यू होगा. सो हियर वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाएगा. वंस द वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन, फिर टेस्टिंग स्टार्ट होगा. दैट इज नथिंग बट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्टार्ट होगा, राइट? सो ऑल द थिंग्स जो फिश मॉडल में अवेलेबल है, ऑल दी स्टेप्स आर अवेलेबल ओवर हियर. इस वाले मॉडल में भी अवेलेबल है. बट गाइज द डिफरेंस इन बिटवीन कि यहाँ पर आप लोग यू कैन नॉट गो बैक ट्रैक. आप पीछे नहीं जा सकते हो. यू कैन नॉट आप जाके आपके मिस्टेक्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते. आप अपने जो भी मिस्टेक किया था प्रीवियस स्टेज में, इसको आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए जब भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगा गाइस, ओनली इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगा. नो अदर एक्टिविटीज विल हैपन, ओनली इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगा. इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में गाइस व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू प्रिपेयर? प्रोडक्ट ओनर क्या बनाते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में? दे क्रिएट्स वन डॉक्यूमेंट, राइट? दैट डॉक्यूमेंट इज BRS document, business requirement specification document. So ये BRS document है, they are going to review once again. वो लोग review करते हैं. Review करने के बाद once they are clear enough, सारे requirement customer से gather होती है, client से, stakeholder से gather होती है, they are going to move to the next stage. That is nothing but the analysis stage. Analysis stage में again they do what? They convert that BRS document into SRS document, right? SRS stands for system software yes, requirement software requirement specification, system requirement specification, उसको FRS भी बोलते हैं, functional requirement specification. but as we have discussed earlier कि हम लोग इसको software requirement specification बोलेंगे, SRS document, software requirement specification, right? So here जब SRS document prepare होगा guys, no other activities will happen. Once the SRS is done, this SRS document will be given to designing phase. डिजाइनिंग फेज के बाद वो डेवलपमेंट फेज में जाएगा, टेस्टिंग फेज को जाएगा, राइट? सो द डिजाइनिंग फेज गाइस, जब डिजाइनिंग चल रहा है, नो अदर एक्टिविटी विल कैरीड आउट. जब एनालिसिस फेज क्लियर होगा, जब प्रोडक्ट ओनर उन लोगों को क्लियर SRS डॉक्यूमेंट देंगे कि यस कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग दिस डिजाइन, ये ऐसा ही होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा ही होना चाहिए, लुक एंड फील ऐसा ही होना चाहिए, then designer will start the design. They will start preparing high level design as well as low level design. वो लोग खुद से हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे. डिज़ाइनिंग फेज में हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन तब तक नहीं होते जब तक एनालिसिस फेज कंप्लीट नहीं होता. मतलब एट अ टाइम गाइस, वन स्टेप एट अ टाइम. एनालिसिस होगा,
तो ही डिजाइनिंग स्टार्ट होगा, तब तक डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं होगा। बिकॉज वाई, अगर उन लोगों ने डिजाइन क्रिएट किए और डिजाइन में कुछ चेंजेस आ गया गाइस, या फिर एनालिसिस फेज में उनको आइडेंटिफाई हुआ कि कस्टमर ने तो नेवी ब्लू कलर बोला था, हमने तो यू नो हमने तो स्काई ब्लू कलर कर दिया है। कस्टमर सेट कि मुझे ब्लू कलर का यूआई चाहिए, कस्टमर ने स्पेसिफाई नहीं किया था कौन सा ब्लू। व्हाट स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ओनर को क्या लगा, दे वांट अ नेवी ब्लू कलर, तो उन्होंने यूआई नेवी ब्लू कलर में बना दिया। और नेवी ब्लू कलर में डिजाइन बनाने के बाद गाइस, डिजाइन बनाने के बाद लेटर ऑन कस्टमर को जब हमने वो डिजाइन दिखाया, ही सेड कि अरे मैंने तो स्काई ब्लू कलर बोला था, नेवी ब्लू कलर नहीं बोला था। सो दैट कैन हैपन। आई एम जस्ट गिविंग यू द सिंपल एग्जांपल गाइस, ऐसे जनरली सिर्फ कलर पे होता है ऐसा नहीं है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। तो अगर डिजाइन करते टाइम इफ कोई मिस्टेक्स, आप मिस्टेकनली कुछ चीजें गलत करते हो, तो गाइस ये वाटरफॉल मॉडल है, यू कैन नॉट गो बैक। आप डिजाइन से आप फिर से एनालिसिस में नहीं जाओगे, फिर से आप एसआरएस डॉक्यूमेंट को करेक्ट नहीं करोगे। ओनली गाइस डिजाइन के बाद डेवलपमेंट में ही जाना है, यू कैन नॉट गो बैक ट्रैक। आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट गो बैक। सो जो फेज में जो चीजें चल रही है उसको करेक्टली करो, प्रॉपरली करो। वंस यू एंश्योर्ड कि नहीं, यही चीजें फाइनल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, यू टेक अ अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर और द क्लाइंट कि हाँ डन, यही आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट है, यही आपका बीआरएस डॉक्यूमेंट है, यही चीज़ें आपकी डिज़ाइन बनी है, लाइक इसके बाद डेवलपमेंट होगा, इसके बाद टेस्ट होगा, लाइक दिस। तो हर एक फेस का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, दैट यू गाइज नो इट वेरी वेल। बट इनिशियली इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में जो बीआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, इसके बाद अगर ये चीज़ें क्लियर हुई तो आप एनालिसिस फेज में जाओगे। एनालिसिस फेज से फिर से यू कैन नॉट गो बैक ट्रैक एंड यू कैन नॉट मॉडिफाई बीआरएस डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? Yes. अदर्स, रेवती, वर्षा, ये क्लियर है टॉपिक? किशन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो हियर आप लोग एंटायरली जो फेज है उसको करेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, देन ओनली यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज नथिंग बट द वाटरफॉल मॉडल एवरीवन। इसको आप लोग वाटरफॉल मॉडल बोलोगे। ऑलराइट, सो लेट मी specifically let me finish this one guys. So this is your initial phase. Once you're done with this, you are going to move to the next stage. Again from here you are going to move to the next stage, that is development and coding. So iska jo flow hai guys, that is downwards, that's why it is called as a waterfall model. और इसको waterfall model क्यों बोलते हैं? बिकॉज waterfall गाइज कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल एक दो वाटरफॉल आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे जो थोड़े बहुत टाइम के लिए रिवर्स फ्लो में चलते हैं, बट फॉर इन सम टाइम 100% क्वांटिटी उल्टा नहीं होता है, राइट? लाइक उनका जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट कैन नॉट गो इन अ रिवर्स डायरेक्शन एज वी नो। इन सेम वे गाइज हियर एज वी हैव डिस्कस, इसका जो फ्लो रहेगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स ओनली। सो दिस इज योर वाटरफॉल मॉडल, ये आपका वाटरफॉल मॉडल है। एंड inside the waterfall model, once you go into the waterfall model, तो ये waterfall model आपको सारी चीज़ें क्लियर करके दे देता है। इट क्लियर्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर करके देगा कि हाँ इंफॉर्मेशन गैदर प्रॉपर हुआ है, नाउ आई कैन मूव टू द एनालिसिस प्रॉपर हुआ है, नाउ आई कैन गो टू द डिजाइनिंग फेज, डिजाइनिंग प्रॉपर हुआ है, आई कैन गो टू द डेवलपमेंट फेज, इफ डेवलपमेंट इज क्लियर इनफ आई विल गो टू द टेस्टिंग फेज। बट गाइज मुझे बताओ, इसमें एक ड्रॉबैक है। जैसे मान के चलो इंफॉर्मेशन गैदरिंग अभी स्टार्ट हुआ है 20th ऑफ अप्रैल को, लेट्स से 10 डेज लग गए मैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए।
तो एनालिसिस फेज में आपका एनालिसिस फेज स्टार्ट हो गया लेट्स से 1 मई से। एनालिसिस करने में 15 डेज लग गया। फिर डिज़ाइनिंग आ गया, तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुआ कुछ 15 मई से। 15 मई से डिज़ाइन करने में लेट्स से 15 दिन लग गए। एंड ऑफ मई हो गया, जून स्टार्ट हो गया गाइस। जून में डेवलप करना स्टार्ट हो गया। डेवलप करने में उन लोगों को कुछ 1.5 महीना लग गया। लेट्स से 15 जुलाई आ गया। सो 15 जुलाई को टेस्टिंग आप स्टार्ट करोगे। अगेन गाइस आप सोचो, अगर 15 जुलाई को टेस्टिंग स्टार्ट होगा, 15 जुलाई को अगर फॉर एग्जांपल 15 जुलाई में टेस्टिंग स्टार्ट होगा, तो आज तो डेट 20th है, तो 20th से लेके 15 जुलाई तक ये टेस्टर कुछ भी कर रहा है क्या? आर टेस्टिंग टीम इज डूइंग एनीथिंग? गाइस टेस्टर हैज टू बी सेट आइडियल, राइट? टेस्टर को आइडियल बैठना पड़ेगा ना, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? Yes. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्पेशली वाटरफॉल मॉडल का ये ड्रॉबैक है कि आप लोग ये जो पर्टिकुलर फेजेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, इसीलिए डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए ये वाटरफॉल मॉडल आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट। स्लोली स्लोली वाटरफॉल मॉडल इंडस्ट्री से कम होते जा रहा है। ऐसे नहीं कि ये 100% बंद होगा गाइस, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर फॉलोइंग दिस मॉडल। ये सारे मॉडल्स अभी भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। माई फ्रेंड who's वर्किंग इन कॉग्निजेंट गाइस, उसका जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ वॉलमार्ट का प्रोजेक्ट। दे आर स्टिल यूजिंग दिस पर्टिकुलर वाटरफॉल मॉडल। शायद उसको 6 महीने में एक बार काम आ जाता है, 4 5 6 महीने में एक बार काम आता है। 15 20 दिन का एक महीने का टेस्टिंग रहता है, उतना एक महीने के लिए वो बिजी रहता है, फिर 5 6 महीने वो शांत रह जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता उसको। अगर आप उसको पूछोगे तो पूरे साल में कितना काम करता है, तो 2 महीने से ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है वो साल में। ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं गाइज। बट टेल मी गाइज, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पर्सन इतने टाइम के लिए आइडल बैठेगा, तो व्हाट डू यू थिंक? इज दैट अ गुड आइडिया? इज दैट अ गुड अप्रोच? Is that a good approach? No, right? So this is why, guys, waterfall model is धीरे धीरे it is getting out of the market. But हाँ guys, still there are lot of project, उसको कोई waterfall model को कोई अदर मॉडल रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में गाइस आप लोग ईच एंड एवरी स्टेज को डॉक्यूमेंट करते हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है, एनालिसिस फेज को भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है, डिज़ाइन फेज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा। सो ईच एंड एवरी फेज इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड। और ये जब डॉक्यूमेंट होगा तभी गाइज, डॉक्यूमेंट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। मतलब जब ये डेवलपमेंट स्टेज से टेस्टिंग स्टेज में जाएगा, तो डेवलपमेंट स्टेज में दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू कोड, रिलेटेड टू डेवलपमेंट। वंस द डेवलपमेंट इज डन गाइज, फिर ही वो लोग टेस्टिंग पे जाएंगे। दे आर गोइंग टू गो टू द टेस्टिंग। टेस्टिंग जो टीम है गाइज, टेस्टिंग टीम को कोड भी मिलेगा और दे विल गेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट टीम कि हमने इस तरीके से कोड क्रिएट किया है, ये सारे मॉड्यूल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वाटरफॉल मॉडल वर्क्स। एनी क्वेश्चन हियर? एनीवन? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी? सर यस। इसमें रिव्यू नहीं होता क्या? रिव्यू होता है ना, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वी डू इंफॉर्मेशन गैदरिंग में? वी स्पेशली गो टू स्टेक होल्डर और द क्लाइंट, और क्लाइंट से हम लोग क्या करते हैं? सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करते, राइट? करेक्ट रवि? Yes. अभी Yes. इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है? BRS. राइट? तो बीआरएस डॉक्यूमेंट, जब तक बीआरएस डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तब तक आप कौन से स्टेज पे नहीं जाओगे? यू आर नॉट गोइंग टू द एनालिसिस स्टेज। तो मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो आपने चीज़ें करी है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो करेक्ट है, तो ये आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। एनालिसिस स्टेज से फिर से बैक ट्रैक कर सकते हो क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में? नहीं, राइट? नहीं. तो इसमें
आपको इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें आपने जो करी है दैट इज़ करेक्ट इनफ। तो वो आप कैसे करोगे? आप रिव्यू से ही करोगे, राइट? एज आई टोल्ड अर्लियर कि इसमें जो आप स्पेशली आप लोग ये जो फिश मॉडल है, इस फिश मॉडल में ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो आपने रिव्यू किया था, एनालिसिस फेज में जो रिव्यू किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी होगी। रिव्यू एक्टिविटी फिश मॉडल से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फिश मॉडल में, हाँ, फिश मॉडल में यू कैन गो बैक ट्रैक, आप पीछे जा सकते थे, बट वाटरफॉल मॉडल में यू कैन नॉट गो बैक ट्रैक, इसीलिए इसमें रिव्यू और भी ज़्यादा होता है। क्लियर रवि? Yes. राइट? एनीवन Yes. Yes. एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? निशा, कोई क्वेरी? किशन, No. No. रेवती, कोई क्वेरी है इसमें? क्लियर हुआ ये वाटरफॉल मॉडल? वर्षा, you have any question? No, sir. Clear. All right, so this is guys waterfall model. As waterfall उसका जो structure होता है downwards, it means you cannot go back track, आप पीछे नहीं जा सकते. This is very important. ये आप लोगों का guys, this is your specially guys, ये आप लोगों का I can say waterfall model है. Now we have just took the overview, हमने इसका जस्ट ओवरव्यू लिया है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें थियरी आप लोगों को क्या क्या बोलना है, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ थियरी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू व्हाट actually you need to talk about this. So specially guys, let me start with this model. That model is waterfall model. ये आपका waterfall model है. This is waterfall model, and in a waterfall model guys, you need to be very much sure कि waterfall model में ये आपके सारे phases included है. You are including all these phases, आप ये सारे phases को include कर रहे हो. Information gathering, analysis, design, development, testing, deployment. ये जो है guys, these are generic phases, इनको हमने already देखा है, right? And now let's talk about exactly waterfall model को आप लोग किस तरीके से denote करोगे, किस तरीके से elaborate करोगे. So guys, waterfall model initially you have to ensure guys, ये जो waterfall model है इसको sequential model बोला जाता है. This is also called as a sequential development model. इसको sequential development model बोला जाता है, right? And you know it very well, इसको sequential क्यों बोला जाता है कि एक stage at a time guys complete होगा, एक phase at a time complete होगा, followed by the sequence, इसीलिए इसको sequential model बोला जाता है. This is not the parallel activity, this is a sequential activity guys. ये sequential model है. Second, you like we cannot go back to previous stage. We cannot go back to previous stage या फिर previous phase. We cannot go back to previous phase. हम लोग इस मॉडल में अपने प्रीवियस फेज में नहीं जा सकते. अगर हम लोग डिज़ाइन में हैं, डिज़ाइन से एनालिसिस नहीं जा सकते, डेवलपमेंट से डिज़ाइन नहीं जा सकते, डेवलपमेंट से टेस्टिंग में ही जाएगा, टेस्टिंग से डिप्लॉयमेंट में ही जाएगा. दैट यू नीड टू इंश्योर गाइज. वी कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस स्टेज या फिर प्रीवियस फेज में हम लोग नहीं जा सकते. अगेन वन मोर थिंग गाइज, व्हेन इट कम्स टू वाटरफॉल मॉडल, ये जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें गाइज या फिर every phase involves lot of documentation. Just a minute. Involves lot of documentation. हर एक फेज में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होता है, हर एक फेज में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होता है, राइट? स्पेशली गाइज ये वाटरफॉल मॉडल जो होता है ये सूटेबल होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं गाइस उसमें वाटरफॉल मॉडल इज़ द गुड अप्रोच. या फिर गाइस ये वाटरफॉल मॉडल आप लोग कब यूज़ करोगे?
जब आपको रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर, मुझे बोलो गाइस, आपको इनिशियली सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, इफ योर गाइस आर क्लियर विद द इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, तो एनालिसिस प्रॉपर होगा कि नहीं होगा गाइस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? एनालिसिस प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, राइट? डिजाइन भी प्रॉपर होगा, डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा, टेस्टिंग भी प्रॉपर होगी और डिप्लॉयमेंट भी प्रॉपर होगा। बट मुझे बोलो, अगर रिक्वायरमेंट्स ही हमें क्लियर नहीं है, वी आर नॉट क्लियर इनफ विद द रिक्वायरमेंट, क्या वाटरफॉल मॉडल सूट करेगा क्या गाइस? अगर आपके रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर नहीं है, विल दिस वाटरफॉल मॉडल विल बी सूटेबल फॉर योर प्रोजेक्ट? No. No. राइट? लेट्स से गाइस, सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। लेट्स से हम लोग व्हाट आई कैन से, हम लोग एक फिटनेस ऐप बना रहे हैं गाइस। लेट्स से कि उस पे फिटनेस के ट्यूटोरियल्स वगैरह होना चाहिए, उसमें आपका डेली डाइट वगैरह होना चाहिए, ऐसा कोई भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से फिलहाल मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए कि जिसमें ये फिटनेस की एक्टिविटीज़ हो, बट मेरे अगर इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं है, I don't have all the requirements clear enough with me, तो जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद मैं एनालिसिस पे जाता हूँ, और एनालिसिस पे जाने के बाद मुझे याद आता है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ और भी ऐड करना था, मुझे उसमें कैलोरीज कितना बर्न हो रहा है, डेली आपका डाइट कैसा होना चाहिए, कितने एज के लिए कौन सा डाइट सूट करेगा, मैंने तो वो इंक्लूड किया ही नहीं है। सो दैट अगर आपके रिक्वायरमेंट चेंजिंग है गाइज, इफ योर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, no one is going to select this waterfall model as an your SDLC model। उस टाइम पे वाटरफॉल मॉडल को सूट सिलेक्ट नहीं किया जाता। बट येस गाइज, अगर आपके इंफॉर्मेशन क्लियर है, अगर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर है एंड वो कभी भी चेंज होने वाले नहीं हैं, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है? जो हेवी प्रोजेक्ट्स, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली गाइज मिलिट्री एप्लीकेशंस, आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, या फिर स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं, साइंस रिलेटेड गाइज, आई कैन से कुछ आपके, जैसे कि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके मिसाइल सिस्टम जो है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेगा, उसमें चेंजेस होने वाले नहीं है गाइज। वंस ऑल द रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड प्रॉपरली, वो फिर से कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। उस केस में गाइज, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इंडस्ट्री सिलेक्ट्स वाटरफॉल मॉडल, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में गाइज वाटरफॉल मॉडल सिलेक्ट होता है, और दैट इज़ वेरी मच सूटेबल मॉडल जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है। सो गाइज, इफ़ योर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर इनफ, तो आप लोग वाटरफॉल मॉडल इज़ द बेस्ट चॉइस। सो सेम वे आप यहाँ पर पॉइंट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर आप इंटरव्यू में बोल भी सकते हो दैट रिक्वायरमेंट्स if requirements are clear if requirements are clear, then waterfall model is best suitable model for our requirement। आपके रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है, अगर आपके सारे रिक्वायरमेंट क्लियर है और चेंज नहीं हो रहे, इफ रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर और रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, अगर आपके रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, इफ योर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, then you can say waterfall is the best suitable model for requirement or for the development। clear everyone? ये clear है ये point? आप लोगों को ये point सारे clear है क्या? why we are going to call it as a sequential model? why we cannot go backtrack guys? हम लोग प्रीवियस स्टेज में क्यों नहीं जा सकते हैं? इसमें हर एक स्टेज में डॉक्यूमेंटेशन क्यों इन्वॉल्व होता है? बिकॉज गाइज, एक स्टेज को आप प्रॉपरली सीक्वेंस में क्लियर करते हो, सीक्वेंस फॉलो करते हो, इसीलिए ईच एंड एवरी स्टेज हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड केयरफुली। क्योंकि इस स्टेज में गाइज अगर एनालिसिस में कोई मिस्टेक हुआ, दैट मिस्टेक इज गोइंग टू रिपीट इन डिज़ाइन, दैट मिस्टेक इज गोइंग टू रिपीट इन डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन टेस्टिंग, और वही प्रोडक्ट आपका डिप्लॉय होगा। फिर अगर कस्टमर आके आपको कंप्लेन करेगा कि आपने तो गलत बना दिया,
तो आप कुछ नहीं कर सकते गाइस। वाटरफॉल मॉडल ऐसा ही है। क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है Yes. किशन? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अदर्स? ओके, Yes, sir. that's it. So guys, this is all about waterfall model. ये important points है इसके कि इसको sequential model बोलोगे। इस फेज में आप प्रीवियस फेज में बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो, हर एक फेज में डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगा। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, रिक्वायरमेंट्स फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहे, गाइज दिस मॉडल इज बेस्ट सूटेबल मॉडल इन द इंडस्ट्री। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट गाइज, suitable for long term project के लिए suitable है, या फिर लार्ज स्केल वाले प्रोजेक्ट के लिए गाइज ये सूटेबल है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए ये सूटेबल होता है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। गाइज अभी मुझे बताओ, आपने प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर किया, एनालिसिस प्रॉपर किया, डिज़ाइन प्रॉपर किया, डेवलपमेंट भी प्रॉपर कर ली, अभी टेस्टिंग में आ गए गाइस। आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, ये एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो, लेट्स से अमेज़ॉन को टेस्ट कर रहे हो, और अमेज़ॉन में गाइस कुछ आपको बग मिल गया, मतलब अमेज़ॉन में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। गाइस ये आपको प्रॉब्लम्स तो मिल गया, बट क्या आप जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्या आप ये डेवलपमेंट टीम को रिटर्न कर सकते हो कि ये आप कोड मॉडिफाई करके दो या फिर कोड चेंज करके दो? कैन वी गो बैक ट्रैक गाइस हियर? इस मॉडल में हम लोग पीछे जा सकते हैं क्या डेवलपमेंट फेज में? एवरीवन, कैन वी गो No. इन द प्रीवियस No, स्टेज? sir. नो राइट। अगर हम लोग प्रीवियस स्टेज में नहीं जा सकते तो ये टेस्टिंग में अगर मुझे कोई डिफेक्ट मिलता है, टेस्टिंग फेज में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू जस्ट नोट ऑल द डिफेक्ट्स जो बग्स है, वो सारे डिफेक्ट्स सारे बग्स हम लोगों को नोट करके रखने पड़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट उनका क्रिएट करना पड़ेगा। एंड गाइस ये पूरा रिलीज, जैसे कि ये वर्जन 1.1 है, लेट्स से दिस वर्जन इज 1.1, ये वर्जन 1.1 में आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स नोट किए हैं, टेस्टिंग फेज ने कुछ प्रॉब्लम्स नोट किए थे, तो इसका जब नेक्स्ट इंटरवल आएगा, इसका जब नेक्स्ट वर्जन आप क्रिएट करोगे, वर्जन 1.2 जब आप लोग स्टार्ट करोगे, तब वर्जन 2 में यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स दिखे थे, प्रीवियस फेज में जो प्रॉब्लम्स दिखे थे, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स गाइस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इंक्लूड करे जाते हैं। आप इनको कंसिडर करते हो और न्यू रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, इनको इनको कंसिडर करते हो, उस हिसाब से गैदर करोगे, उस हिसाब से फिर से एनालिसिस करोगे, डिज़ाइन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, फिर से डिप्लॉय कर दोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? Yes. राइट। तो ये मॉडल कहाँ पे सूटेबल होता है गाइज? एक तो लार्ज प्रोजेक्ट या तो सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट, कि गाइज मैं एक ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मुझे गेम डेवलप करना है, तो गेम गाइज कोई भी गेम जब डेवलप होता है, कोई भी जैसे गाइस कोई भी गेम डेवलप हो गया, जैसे कि आपका सबवे सर्फ है, आपका नॉर्मल जो स्नेक का गेम आया था गाइस, इसमें अगर कुछ डिफेक्ट मिलते हैं तो दे स्पेसिफिकली टेस्टिंग में अगर कुछ उनको डिफेक्ट वगैरह मिलते हैं, दे नोट डाउन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स सो दैट इनका जब नेक्स्ट वर्जन रिलीज होगा, उस नेक्स्ट वर्जन में गाइस वो डिफेक्ट वो रिलीज कर दे, मतलब डिफेक्ट को फिक्स कर देंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या गाइज ये आप Yes, sir. लोगों को? सो ये स्पेशली गेम डेवलप करने के लिए, या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस, या फिर गाइज आपके स्पेस रिसर्च एप्लीकेशंस वगैरह है, उस फेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस फेज आई मीन दिस मॉडल इज़ वेरी यूजफुल। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन? ऑलराइट एवरीवन? सो जैसे नॉर्मली आप छोटे मोटे गेम्स वगैरह डिज़ाइन करोगे, जैसे स्नेक हो गया, जैसे हमने सबवे सर्फ बोला, इनिशियली मुझे गाइज ऐसा गेम डेवलप करना, मुझे नहीं पता है कि वो गेम मार्केट में हिट होगा कि नहीं होगा। जस्ट व्हाट आई वांट कि मुझे गेम क्रिएट करना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, जिस पे भी मुझे रिलीज़ करना है मैं रिलीज़ कर दूंगा। रिलीज़ करने के बाद टेस्टिंग टीम को भी कुछ डिफेक्ट मिलेंगे,
और गाइस जब हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, लेट्स से आपका गेम रिलीज हो गया, तो अगर आपका गेम में कोई डिफेक्ट है तो जनरली पीपल आर गोइंग टू कमेंट ऑन द प्ले स्टोर, राइट? अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है तो आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा, यूजुअली सेट ऑफ पीपल जो होते हैं, सर्टन पीपल आर गोइंग टू कमेंट कि आपका गेम तो बहुत अच्छा है बट दिस इज वेरी स्लो, दिस इज क्रैशिंग, बीच में ही मैं गेम ओपन करता हूँ क्रैश हो जाता है, ट्रैश हो रहा है, स्लो है, या फिर बीच में स्टक हो रहा है। इनके जो गाइस एंड यूज़र के, कस्टमर के भी जो कंप्लेंट्स आएंगे, उनके उनके एंड से जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं और टेस्टिंग टीम को जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं। दैट इज गाइस वाटरफॉल मॉडल, दिस इज योर वाटरफॉल मॉडल। ऑलराइट एवरीवन, तो इसके Yes. गाइस इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? इसके एडवांटेजेस क्या बोलोगे आप लोग? एडवांटेजेस आर आल्सो देयर गाइस, इसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। यू गाइज आर हैविंग लॉट ऑफ एडवांटेजेस अबाउट दिस मॉडल। कि इसका एडवांटेज ऐसा है गाइज, इफ रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, इफ रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर क्लियर देन इट इज बेस्ट सूटेबल बेस्ट सूटेबल मॉडल। ये आपका बेस्ट सूटेबल मॉडल है गाइज, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है तो बेस्ट सूटेबल मॉडल है। सेकंड गाइज, यू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी स्टेज, आप लोग सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करते हो। सो एवरी फेज हैज़ डॉक्यूमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप लोग आप बोल सकते हो कि एवरी फेज हैज़ अ डॉक्यूमेंट्स, कि स्पेशली उन लोगों ने उस फेज में क्या किया है, व्हाट दे हैव डन, दैट एवरी फेज हैज़ अ डॉक्यूमेंट which is which is proof for the next phase, which is proof for the next stage या फिर next phase के लिए गाइज वो डॉक्यूमेंट एज एन प्रूफ रहेगा कि हमने सारी चीज़ें एक्यूरेटली करके आपको दी है, राइट? सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। सूटेबल फॉर स्मॉल scale and large or long-term project के लिए गए, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट या फिर लार्ज या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये सूटेबल हो जाता है। दिस इज वेरी सूटेबल मॉडल। ये इसके कुछ एडवांटेजेस है गाइज, यू हैव टू यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस। फिर इसके लिमिटेशंस भी है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? इसके लिमिटेशंस क्या आएंगे? So guys, can we go backtrack? Can we go to the previous stage? No, right? We cannot go to the previous, आप previous phase में नहीं जा सकते। You cannot go to the you cannot go to the previous phase, आप previous phase में नहीं जा सकते, right? Second guys, अगर आप लोग इस मॉडल को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो इसका एक और एडवांटेज है गाइज, यूजुअली आपके जो टेस्टर्स और डेवलपमेंट जो फेज़ है गाइज, ये लोग बहुत टाइम के लिए आइडल होते हैं। डेवलपर को तो छोड़ो, डेवलपर से ज़्यादा टेस्टर बहुत ज़्यादा आइडल होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, राइट? कि इसमें एक और ड्रॉबैक ऐसा है कि पीपल जो है accurately organization are not, or the project are not able to get actual outcome out of every employee का actual outcome नहीं आता। बट अगेन गाइज, ये हम लोग कभी भी इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलेंगे, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेट्स से इफ वी रिपोर्टेड एनी बग और डिफेक्ट, अगर हम लोग कोई बग या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं, वी कैन नॉट फिक्स इन करंट रिलीज, वी कैन नॉट फिक्स इन करंट रिलीज या फिर करंट वर्जन। हम लोग उसको फ्यूचर में ही
फ्यूचर में ही इसको फिक्स कर सकते हैं. वी कैन ओनली फिक्स इट इन द फ्यूचर ओनली. वी कैन नॉट फिक्स इट इन द करंट. गाइस हम लोग करंट जो फ्लो है, करंट वर्जन जो है, करंट वर्जन में हम लोग इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे. वी कैन फिक्स इट इन द फ्यूचर ओनली. फ्यूचर जो रिलीज होगा उसी में हम लोग इसको फिक्स करेंगे. Alright everyone, so these are the advantages and the limitations of the waterfall model. ये आपके advantages and the limitations है waterfall model के लिए. Anyone is having any query here guys related to waterfall model? Whatever we have seen today guys, do we have any queries related to waterfall? Guys ये model clear है क्या आप लोगों को? Yes. Okay, others किसी को कुछ question है? Alright, so we'll stop here today guys.